Okay, the next question says circles. In the topic circles, the topic circle is not new to you children, because it's already in basic maths. I have told you about the basics of circles, all the definitions I have told you. Even then, just a running revision we will take it, and let us see some basic definitions. Actually, if you refer my video in basic maths, you will get a topic circles, all about circles. In that you will get all the basic definitions. Just a short revision we will take it. Let us see what is a circle. A collection of all the points in a plane which is at a fixed distance from a point is called a circle. See here, suppose when you are drawing with the compass, what you are doing is a point is fixed here and the remaining points are moving around a fixed point, and that is what we call it as circle. It is one point is fixed. If I ask you to draw a circle, what you will do is you will keep the compass on the notebook and then you will try to draw the circle. That means what you are doing is one point is fixed here and the second point is continuously moving around a fixed point, and that is what we call it as circle. Now radius of a circle, that also you know children. The distance from the center of a circle to circumference is called as radius of a circle. The line segment joining the center and any point on the circle is called as radius of a circle. It is used in two sense, in the sense of a line segment and also in the sense of a length also. See, this distance from the center to the circumference is called as radius. Now of course, if at all I join this radius again from here to this point, it will become the diameter, and this diameter will be always equal to 2 times the radius. That you already know it. Just a short revision here, d is always equal to 2r, that is also known to you. Now when I suppose if I draw a circle, then it divides the plane into 3 parts. One is interior, one is on the circle, one is exterior of the circle. सर्कल अगर मैंने पेज के ऊपर बनाया तो सर्कल के अंदर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, सर्कल के ऊपर कुछ पॉइंट्स मिलेंगे, सर्कल के बाहर भी पॉइंट्स मिलेंगे. So a circle divides the plane on which it lies into 3 parts. They are inside the circle, which is called as interior of the circle, and outside the circle, and on the circle and exterior of the circle. 3 parts are there. तो जब भी आप सर्कल बनाओगे तो तीन तरफ जगह पॉइंट्स रख सकते हो, सर्कल के अंदर, सर्कल के ऊपर, सर्कल के बाहर. नेक्स्ट कॉर्ड किसको बोलते हैं? सर्कल के सर्कमफ्रेंस को 2 जगह पे टच करने वाली लाइन होगी कॉर्ड. मान लीजिए मैंने यहाँ से यहाँ तक बनाया तो वो होगा कॉर्ड ए बी. तो ये कॉर्ड जो है, द लाइन दैट टचेस एनी 2 पॉइंट्स विद इन द सर्कल इज कॉल्ड एज कॉर्ड. तो यहाँ पर डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है. तो देखिए डायमीटर इस पॉइंट से निकल रहा है, इस पॉइंट को जोड़ रहा है, और सेंटर से भी निकल रहा है. तो अगर सर्कल के ऊपर मैंने बहुत सारे कॉर्ड बनाए, इफ आई ड्रॉ मेनी कॉर्ड्स हियर, यू कैन वेरी इजीली गेस दैट यू विल गेट द डायमीटर एज द ग्रेटेस्ट कॉर्ड. इसीलिए बच्चों हम ये कहते हैं द कॉर्ड विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड एज डायमीटर एंड इट इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. And all the diameters which have the same length is equal to 2 times the radius. Of course, I have already told you, diameter is 2 times the radius. And what is chord? The distance between any 2 points on the circumference of the circle. It is not necessary that all chords should pass through the center, but the diameter will pass through the center and it is also a chord. All chords are not diameter, but all diameters are chord. इस सर्कल के ऊपर जितने सारे diameters होंगे, सारे होंगे क्या होंगे? chords होंगे. नेक्स्ट आता है आर्क. आर्क का मतलब क्या होता है? मान लीजिए सर्कल के ऊपर अगर ये 2 पॉइंट मैंने ले लिए तो इसको हम कहेंगे आर्क. तो क्या होता है? अ पीस ऑफ अ सर्कल. सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा, जैसे हम लाइन का एक छोटा सा टुकड़े को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं. लाइन के टुकड़े को हम क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं. ब्रेड आप बेकरी में जाते हो, ब्रेड का स्लाइस करते हैं, सेगमेंट्स करते हैं, ब्रेड पीसेस हम बोलते हैं. तो उसी तरह से यहाँ पर भी हम क्या करते हैं? सर्कल का पीस होता है. सर्कल का ये बड़ा पीस जो है उसको मेजर आर्क बोलते हैं. सर्कल का ये छोटा पीस होता है, इसको हम माइनर आर्क बोलते हैं. तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई, ये पूरा जो पार्ट है इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं. बाउंड्री, सर्कल का बाउंड्री को हम क्या बोलते हैं? बाउंड्री बोलते हैं. जैसे रेक्टेंगल के अंदर हम पेरीमीटर बोलते हैं, स्क्वायर के अंदर हम पेरीमीटर बोलते हैं, वैसे सर्कल के अंदर हम
वी कॉल इट एज सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल। इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर अगर छोटा सा टुकड़ा मैं ले लूँ तो दैट इज कॉल्ड एज मेजर आर्क। तो ये बड़ा वाला जो होता है उसको मेजर बोलते हैं, छोटे वाले को हम क्या बोलते हैं, माइनर बोलते हैं। द लेंथ ऑफ द कंप्लीट सर्कल इज कॉल्ड सर्कमफ्रेंस। आपको जैसे मैंने आपको बताया था आपको। सेगमेंट किसे बोलते हैं? देखिए सेगमेंट का मतलब होता है ये कॉर्ड है, इस कॉर्ड और सर्कमफ्रेंस के बीच में जो एरिया होगा इस पार्ट को हम सेगमेंट बोलते हैं। तो ये बड़ा पार्ट है तो इसको मेजर बोलते हैं, और छोटा पार्ट है तो हम इसको क्या बोलते हैं, माइनर सेगमेंट बोलते हैं। द एरिया बॉन्डेड बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क, दिस आर्क इज कॉल्ड एज सेगमेंट। हियर दिस इज द कॉर्ड एंड ये मेजर आर्क है। द एरिया बिटवीन मेजर आर्क एंड द कॉर्ड इज मेजर सेगमेंट। द एरिया बिटवीन माइनर सेगमेंट एंड द कॉर्ड इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट। तो यही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि द एरिया बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। इसको हम सेगमेंट ऑफ द सर्कल बोलते हैं। व्हेन द टू आर्क्स आर इक्वल देन इट इज अ सेमी सर्कल। मान लीजिए अगर यहाँ पर दोनों आर्क इक्वल हो गए तो क्या होगा सर, तो वो सेमी सर्कल होगा। देन बोथ सेगमेंट्स एंड बोथ सेक्टर्स विल बिकम इक्वल एंड उसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल। बीचों बीच अगर आ गया तो, वरना यहाँ पर क्या है देखिए आप, मेजर आर्क है इसको जोड़ा जा रहा है तो ये मेजर सेगमेंट होगा, ये माइनर आर्क है इसको जोड़ा जा रहा है तो ये माइनर सेगमेंट होगा। तो दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंट, पार्ट ऑफ द सर्कल, नॉट सर्कमफ्रेंस। हियर सेगमेंट, यहाँ पर देखिए सेक्टर, तो सेक्टर के अंदर आप देखिए कि यहाँ देखिए सेक्टर के अंदर दो पार्ट होते हैं। ये देखिए कि ये माइनर सेक्टर है और ये मेजर सेक्टर है। तो ये देखिए रेडियस है, OP और OQ रेडियस है, और उसको क्या कर रहा है, एक आर्क उसको ज्वाइन कर रहा है। द एरिया बॉन्डेड बिटवीन द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड एन आर्क इज कॉल्ड एज सेक्टर। तो यहाँ पर भी OP और OQ आर्क है, यहाँ पर भी इसको जोड़ा जा रहा है। सो द एरिया बॉन्डेड बिटवीन द रेडियस ऑफ अ सर्कल एंड द आर्क इज कॉल्ड एज सेक्टर। छोटा वाला अगर है, देखिए ये वाला अगर एंगल छोटा है तो इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर, या रिफ्लेक्स एंगल अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं मेजर सेक्टर। ये बड़ा वाला पूरा पार्ट है मेजर सेक्टर, ये छोटा वाला पार्ट है माइनर सेक्टर। द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड टू रेडियाई जॉइनिंग द सेंटर to the end points of the arc is called as sector. There are two types of sectors, one is minor sector, one is major sector. तो ये सारे बेसिक डेफिनेशन है सर्कल के ऊपर। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल मतलब बाउंड्री होता है, सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल यानी बाउंड्री होता है। नेक्स्ट रेडियस ऑफ अ सर्कल यानी सेंटर से लेकर सर्कमफ्रेंस तक की दूरी होती है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था कि डायमीटर हमेशा रेडियस का डबल होता है। बाद में एक सर्कल जब हम किसी प्लेन के ऊपर बनाते हैं तो तीन पार्ट बनते हैं, इंटीरियर, एक्सटीरियर और ऑन दी सर्कल बनता है। कॉर्ड यानी क्या होता है, लाइन जॉइनिंग यानी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सबसे बड़ा कॉर्ड होता है बच्चों डायमीटर होता है, जितने डायमीटर होंगे उतने कॉर्ड होंगे। नेक्स्ट आर्क होता है, आर्क यानी पीस ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कल के ऊपर का एक छोटा सा टुकड़ा जो होगा उसको हम आर्क बोलते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए बड़ा अगर टुकड़ा है तो उसको मेजर आर्क कहा जाएगा, छोटा अगर टुकड़ा है तो उसको माइनर आर्क कहा जाएगा। सेगमेंट किसे कहते हैं, इस आर्क और कॉर्ड के बीच के जो एरिया है, क्षेत्रफल है, दैट इज कॉल्ड एज मेजर सेगमेंट। और ये छोटा माइनर आर्क, ये माइनर आर्क और ये कॉर्ड अगर है उसको माइनर सेगमेंट कहते हैं। और सेक्टर का मतलब होता है ये रेडियस और इस आर्क के बीच की ये, तो इसका कंफ्यूज मत कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, कॉर्ड एंड द आर्क है और यहाँ पर रेडियस एंड द आर्क है। मेजर डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर एंड सेगमेंट इज, सेगमेंट के अंदर क्या होता है बच्चों, कॉर्ड और आर्क के बीच का एरिया होता है, और यहाँ पर क्या होता है, दो रेडियस और आर्क के बीच का एरिया होता है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेक्टर एंड द सेगमेंट। और आर्क तो आप जानते हैं। तो ये बेसिक डेफिनेशंस हैं। अगर इस डेफिनेशंस को आप ठीक से समझ लोगे तो हमारा जो अपकमिंग वीडियो है जिसके अंदर हम आपको एक्सरसाइज 8.1 करवाएंगे वो आप बड़े आसानी से समझ सकते हो और कर सकते हो। तो अंडरस्टैंड द बेसिक डेफिनेशंस, इसको आप अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए और इसको सॉल्व करने का प्रयास आप कीजिए।